कंसेप्ट का नाम है क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट, कंपनी का भी यही नाम है और इसकी वेबसाइट है qjetinvest.com। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो है ये 10 साल से भी ज्यादा स्टॉक मार्केट में ये अवेलेबल है और ट्रेड करती है। ठीक है, और क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट ये 8 कंट्रीज में अवेलेबल है, 30 लोकेशन में इसके ऑलरेडी वर्क कर रही है। इसके अलावा ग्वांगजो चाइना में इसका हेड ऑफिस बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी फर्म या कंपनी नहीं है, ये एक लाइसेंस्ड और रेगुलेटेड फर्म है जिसको असेट्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ चाइना यानी कि एमेक द्वारा लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, और 50 बिलियन युआन के साथ में लोगों का जो फंड है ये असेट्स मैनेज करती है, जिसमें इसके इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट क्लाइंट होते हैं। ऑलमोस्ट ये आपका 7 से 8 बिलियन डॉलर का फंड बनता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा फंड ट्रेड करती है तो उसके ऊपर लॉजिकली इसके ऊपर एक बहुत बड़ी प्रोफाइल है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ये लेके आए हैं और इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्यूजेट बिग डाटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट BDAI, जो कि एक अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी है जो कि मार्केट की हर कंडीशन में कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाकर देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार इस कंपनी की पूरी प्रोफाइल को एक वीडियो के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो प्लीज एक 3 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो आप जरूर देखिए। For more than 10 years, we at QZ Asset Management have managed our clients' wealth and served them as trusted and holistic advisors. In all we do, we are inspired by our purpose, creating value beyond wealth. QZ Asset Management is present in over 8 countries and more than 30 locations. Headquartered in Guangzhou, China, we are licensed and regulated by the Asset Management Association of China. With a client-centric approach, we manage over 50 billion yuan on behalf of our institutional and private clients. Through our proprietary and award-winning fintech solution, the QZ Big Data and Artificial Intelligence BDAI analytics, we have consistently achieved strong growth momentum in all market conditions. Deploying our BDAI technology with a robust risk management approach in both direct equities trading and stock indices allows us to achieve our primary objective of generating momentous growth in a sustainable manner. The market-leading BDAI analytics program processes billions of market trading data in milliseconds with an ultra-high adoption rate under any market situation. QZ Asset Management is spearheaded by CEO Professor Blake Yong, who holds a doctorate in economics from the London School of Economics and Chartered Financial Analyst Level 3 qualification. In 2012, he was lead investment analyst at top UK firm Blue Bay Asset Management before joining American quantitative fund 2 Sigma, where he was responsible for the research and development of artificial intelligence technology between 2013 and 2016. In 2016, Blake joined QZ Asset Management as CEO to lead the research and development of BDAI technology, long-term strategic planning, and overall decision-making. Driven by his innovative and methodical approach, QZ Asset Management grew a remarkable 2,000% over 6 years. And he was awarded a Pioneer in Finance Award at the Shanghai FinTech Summit in 2019. At QZ Asset Management, we celebrate and enable you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Grow your wealth and achieve your financial aspirations together with QZ Asset Management. Because what matters to you matters to us. ओके, व्हाट मैटर्स टू यू मैटर्स टू अस। ये था दोस्तों क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट का प्रोफाइल का एक छोटा सा डिटेल।
ठीक है। और इसमें आई होप आपको कंपनी की प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा आइडिया जरूर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस कंपनी में आगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बीडाई टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़ रही है। तो बीडाई टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े लेवल पर वर्क कर रही है, आगे हमें डिटेल में मिल जाएगा। अगर हम कंपनी के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अगर आपको कंपनी चाइना के, जैसे कि चाइना से रजिस्टर्ड है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद में कंपनी का ऑफिशियल नाम है ग्वांगजो क्वियांस एसेट्स मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे जहां से आप कंपनी की डिटेल चेक करते हैं, तो आप इसको अगर यहाँ पे जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे डेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जब ये कंपनी रजिस्टर हुई थी तो ये है 21 सितंबर 2012, यानी कि ऑलमोस्ट 10 साल से भी ज्यादा कंपनी को यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, और आप इसके बारे में अगर पुरानी डिटेल्स भी देखना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप कंपनी से भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि आप सीईओ जो इस कंपनी के हैं ब्लेक योंग, उनसे भी डायरेक्टली आप जूम पर या पर्सनली भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से कांटेक्ट करना या उनके टच में रहना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है यहाँ पे। ठीक है, और कंपनी की सारी डिटेल आपको ऑफिशियली मिल जाएगी। इसका ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, ऑथराइज कंपनी है, जिसके बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। अभी इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो इनके साथ में काफी बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी जुड़े हुए हैं। इनका जो ऑडिटर है वो केपीएमजी है। केपीएमजी एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, एक एसोसिएशन है जो ऑडिटिंग भी करती है और डायरेक्शन भी देती है। लीगल एंड कंप्लायंस में डेंटन है, और सबसे बड़ा जो रोल है यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स का, इसमें आपके जेपी मॉर्गन चेस, बार्कलेज, आईसीबीसी, बैंक ऑफ चाइना, सिटिक्स सिक्योरिटीज, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक्स। ओके, और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है दोस्तों, जेपी मॉर्गन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बार्कलेज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बैंक ऑफ चाइना कोई भी छोटा मोटा नाम नहीं है। तो ये इसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अगर हम इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ का नाम है प्रोफेसर ब्लेक योंग। इन्होंने 2016 में क्यूजेड को ज्वाइन किया था। उससे पहले इसके जो भी फाउंडर्स थे, इसके जो भी सीईओ थे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट qjetinvest.com, ओके, qjetinvest.com, इसमें आप हाइलाइट्स में जाएंगे और क्यूजेड लीडरशिप में जाएंगे तो वहां पे भी आपको सारी डिटेल इनकी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे जो इस कंपनी के जो सीईओ है प्रोफेसर ब्लेक योंग, ये सीएफए हैं लेवल 3 से, और डॉक्टरेट है ये इकोनॉमिक्स में फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। पायनियर है, फाइनेंशियल अवार्ड इनको मिला है शंघाई फिनटेक्स समिट में 2019 में। जिस टेक्नोलॉजी की मदद से ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी ने पिछले 6 साल में इनको 2000% से भी ज्यादा की ग्रोथ दी है इस कंपनी में। ठीक है, वो भी कोविड के बावजूद। अगर हम इसकी प्रोफाइल के बारे में बात करें तो जो ब्लेक योंग है, इसकी प्रोफाइल चाइना की बड़ी बड़ी टाइम मैगजीन्स में भी देख सकते हो, और पब्लिक प्रोफाइल भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यही इस कंपनी के सीईओ है जिनसे आप जूम पर भी डायरेक्टली मिल सकते हो। दोस्तों आगे बात करते हैं, क्या है ये बीडाई टेक्नोलॉजी। बीडाई टेक्नोलॉजी एक्चुअली में एक मार्केट लीडिंग एनालिटिक्स प्रोग्राम चलता है जो कि मिली सेकेंड्स में काफी सारे चार्ट्स को स्टडी करता है, और कंपनी के लिए उन चार्ट्स में एक अच्छे खासे ट्रेड का एक ऑप्शन कंपनी को लाके देता है, जहां से कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करती है। एक अपॉर्चुनिटीज मिली सेकेंड्स में कंपनी को मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और जी कह रहे हैं ऐसा ही नहीं है। एक्चुअली इस टेक्नोलॉजी को 2019 में अवार्ड किया गया था शंघाई फिनटेक्स लीडरशिप अवार्ड से। ठीक है, कोरिया में भी इसको अवार्ड दिया गया था, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ओके, इस टेक्नोलॉजी में आगे भी आप जब इसकी पूरी वेबसाइट पे जाएंगे तो बहुत डिटेल मिल जाएगी। मतलब ये जो मैं नाम इजीली मैं ले रहा हूँ बीडाई, तो इसके बारे में कंपनी ने बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे ये इतना जबरदस्त है। ओके, अब हम थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेडिंग कभी भी एक ही वे में नहीं होती है, वो कभी बुलिश होती है, कभी बियरिश होती है, अप होती है, कभी डाउन होती है।
तो जैसा होता है कि कंपनी में ये जो बीडाई ट्रेडिंग जो है, ये एक्चुअली S&P 500 में इंडिसेस में इक्विटी में ट्रेड करता है। S&P 500 मतलब कि टॉप 500 कंपनीज, उसमें ये ट्रेड करता है। जैसे कि आपके एप्पल्स, माइक्रोसॉफ्ट, बर्कशायर, जेपी मॉर्गन चेस, जॉनसन एंड जॉनसन्स, ये वो कंपनीज हैं जो एक रात में बैंकरप्ट नहीं हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं और इनका इतिहास भी बहुत पुराना है। और ऐसी ही बड़ी से बड़ी कंपनी में ही हमारा जो क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है ये ट्रेड करती है। ओके, इसी में बीडाई जो है ट्रेड करता है। अब इस चार्ट के जरिए इन्होंने दिखाया कि मार्केट में अप्स भी हो रहे, डाउन्स भी हो रहे हैं, बुलिश भी है, बेरिश पैटर्न भी बन रहा है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर की जो लाइन है ये इन कंपनीज का एक ओवरव्यू है, और ये जो रेड कलर की लाइन है ये है बीडाई, कि इससे ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो बीडाई है मार्केट की हर कंडीशन में अपने आप को बीडाई ने स्टेबल रखा है, कंपनी की ग्रोथ को, और हमेशा डेवलपमेंट वे में ही रखा है। ओके, तो इससे इनकी बीडाई टेक्नोलॉजी की जो काबिलियत है वो साबित होती है। आगे इस टेक्नोलॉजी को बड़ी बड़ी मीडिया जो है कवरेज ऑलरेडी कर चुकी है। अगर हम इनके अचीवमेंट और हाइलाइट्स के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं इस कंपनी को, और काफी सारे एग्जीबिशन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये 2019 में शंघाई में फिनटेक टेक्नोलॉजी इनोवेशन फोरम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। 300 से ज्यादा प्रोफेशनल लोग वहां पे अवेलेबल थे। शंघाई में फिनटेक टेक्नोलॉजी में जो इनका इनोवेशन हुआ, 300 अपना प्रोफेशनल तो थे ही, साथ में वहाँ पे इस कंपनी के जो सीईओ हैं ब्लेक योंग, वो एज ए पैनलिस्ट भी वहाँ पे इनवाइटेड थे और की नोट स्पीकर थे जिन्होंने अपनी बीडाई टेक्नोलॉजी को वहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, और इतना ही नहीं, इसी शो में इनको जो है अवार्ड भी दिया गया, और इस टेक्नोलॉजी को भी और प्रोफेसर को भी दोनों को अवार्ड दिया गया था। ये चाइनीज में आप इसको गूगल से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कैमरा ट्रांसलेशन ऐप हो तो उससे कर सकते हैं, इजी हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने चाइना ग्वांगजो में इवेंट हुआ था जून 2019 में, तो वहां पे इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट किया, और इस इवेंट में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने विजिट किया। 300 जर्नलिस्ट थे, 90 मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया। 3 दिन का दोस्तों ये इवेंट चला था। ठीक है, इसके अलावा आप इनके ग्वांगजो में जितने भी इवेंट हुए, जगह जगह जितने भी इवेंट्स हुए, इन्होंने अपने आप को हर इवेंट में प्रेजेंट किया है। तो इस लिस्ट का कोई अंत नहीं है। इन्होंने सेलिब्रेशंस किए, मैनेजिंग अपना सेलिब्रेशन भी इन्होंने किया ग्रेजुएशन बेस पे, और इस इवेंट का नाम था फर्स्ट मैनेजरल एसोसिएट ग्रेजुएशन सेरेमनी। ओके, इसके बाद में इन्होंने साउथ कोरिया सियोल में भी अपना जो है एआई एक्सपो कोरिया में अपनी टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट किया। यहाँ पे दोस्तों इस फोटो में सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है, जहां पर क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट का नाम है, उसके साथ में ही IBM है, वहां पे इंटेल भी है, सेल्टिक्स भी है, और इंटेल IBM कितने बड़े नाम है आप ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये बीडाई टेक्नोलॉजी कितना एडवांस है उसको लेकर इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंट किया। ठीक है, और यहाँ पे अवार्ड्स भी इन्होंने जीते, जिसकी कोई कमी नहीं है। यहाँ पे लगातार आप देखेंगे स्क्रीन पे मोर एंड मोर एंड मोर अवार्ड्स ही अवार्ड्स है, एग्जीबिशन से एग्जीबिशन में बीडाई को इन्होंने आगे रखा है। राइट, और भी आपको मिल जाएंगे ढेर सारे अवार्ड्स में, आपको इनका पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। बीडाई, एवरीवेयर इज बीडाई, और इसका कोई अंत नहीं है। जब आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे आप जब हाइलाइट्स पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट पे, qjetinvest.com की हाइलाइट्स पे, तो वहां पे भी आपको ढेर सारे इनके बारे में, सारे जितने भी इवेंट्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो सब यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा, सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है कंपनी की प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई, कंपनी का ओवरव्यू, उसके रजिस्ट्रेशन, उसका लीगल, सब कुछ मैंने आपको बताया। अब जैसे कि कंपनी ने कुछ चीजें प्लान की थी 2019 में, उन्होंने शंघाई स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने का प्लान किया था। इसके अलावा उन्होंने एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने की कोशिश की थी 2020 में, जो कि कोविड के कारण अभी तक नहीं हो पाया था, तो इसलिए इन्होंने
लेकिन वो जो काम अब नहीं हुआ था वो आने वाले समय में ये करना चाह रहे हैं और उसको प्लान किया है इन्होंने। और इसके लिए इन्होंने रिसेंटली हम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी, मैं आपको सीधा वो बता देता हूँ कि इन्होंने अगस्त और सितंबर में अपने कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं और पब्लिक को इन्होंने इनवाइट किया है। जैसे कि अभी तक इनके जो क्लाइंट्स है स्टॉक मार्केट में, ये ट्रेडिशनल वे में ट्रेड कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, जहां पे इनके इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट क्लाइंट है। अब इन्होंने पब्लिक को भी इनवाइट किया है इस सिस्टम में एनरोल होने के लिए। तो इसके लिए इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा लिया है और इस ऑप्शन से इन्होंने दो तरह के पैकेज इन्होंने बनाए हैं, QJet बेसिक और एलीट। अब ये क्या प्लान है और इनसे हमें क्या बेनिफिट होने वाला है एज ए इन्वेस्टर और एज ए नेटवर्कर, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आपकी बेसिक में आपके ये पैकेज आते हैं, कोई भी पैकेज आप $100 से लेके $900 का कोई भी अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको वीकली जो है 3.5% मिलेगा, यानी कि मंथली का आपको मिलेगा टोटल 15%, ठीक है। और $100 से लेकर $900 कोई भी पैकेज लोगे आप तो उसका अप टू 4x होने तक आपको जो है प्रॉफिट मिलता रहेगा। यहाँ पे प्लस पॉइंट ये कि हमारी जो कैपिटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, वो आगे स्लाइड में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा एलिट पैकेज कौन से होते हैं, जो आपके अगर आप $1000 या उससे ज्यादा की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, पैकेज लेते हैं, तो मंथली आपको 30% मिलेगा, यानी कि 7% वीकली आपको मिलेगा। यहाँ पे भी आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है और ये आपको अप टू 4x यानी कि 400% होने तक मिलेगा। सिंपल है, $100 से $900 के पैकेज में 15% मंथली है और $1000 से प्लस के पैकेज में 30% मंथली है। ओके, अब जो कंपनी यहाँ पे फंडिंग कर रही है अपनी, जो नेटवर्क यहाँ पे अपना फंड करना चाहते हैं, कंपनी ने उनको काफी ज्यादा प्रोटेक्शंस दी है इनकी कैपिटल को, और उनके लिए काफी सारे सोर्सेस कंपनी ने उनके लिए बना रखे हैं। जिसमें पहला सोर्स है कंपनी का कैपिटल प्रोटेक्शन स्कीम। इसमें क्या होता है, जो भी पर्सन यहाँ पे अपना जितना भी फंड आप डालते हैं, एग्जाम्पल के तौर में आप अगर $100 यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका होगा असेट्स अंडर मैनेजमेंट। इसको हम बोलेंगे असेट्स अंडर मैनेजमेंट, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे ओम, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप $100 अपना इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, तो कंपनी प्रॉमिस करते है कि सेम उतनी मात्रा में कंपनी भी उतनी ही वैल्यू में फंडिंग करेगी, यानी कि $100 अगर आपने डिपॉजिट किया तो $100 कंपनी खुद का भी यहाँ पे री इन्वेस्ट करेगी और $200 पे एक कंपनी का ट्रेड होगा। और ये ट्रेड कौन करेगा, BDI टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जब $200 हो जाएगा, $100 आपका होगा, $100 कंपनी खुद इन्वेस्ट करेगी। तो इसको कंपनी ने बोला है डॉम, ड्यूल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि कंपनी BDI टेक्नोलॉजी की तरफ से अपना इसको ट्रेड करेगी। इनको अपनी टेक्नोलॉजी पे पूरा विश्वास है। फिर भी इन्होंने यहाँ पे ये लिखा है कि बाय चांस किसी भी कंडीशन में अगर हम लॉस भी होता है तो हम मैक्सिमम 50% का लॉस हम बेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारा जो कैपिटल है वो 100% कैपिटल जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, राइट। तो एक इन्होंने यहाँ पे ये प्रोग्राम रहा है कि इनकी ट्रेडिंग अगर ये करते भी हैं, ट्रेडिंग जिस तरह से करते हैं, लॉस भी अगर होता है तो भी हमारा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहेगा। इसको शॉर्ट में दोबारा समझते हैं। $100 से $900 का आपने कोई भी पैकेज लिया तो उसका 4x होने तक आपको इनकम आएगी, 15% मंथली आएगा, 3.5% वीकली। $1000 प्लस का कोई भी पैकेज रहेगा और तो उसका भी 4x आपको मिलेगा, 30% मंथली यानी कि 7% वीकली। दो मतलब जितना आप इन्वेस्ट करेंगे सेम उतनी अमाउंट में कंपनी भी इन्वेस्ट होगी और उस पर ट्रेड होगा और उस ट्रेड को आप खुद देख पाएंगे। स्टॉप लॉस मैक्सिमम 50% का रहेगा। इसमें आपका जो रिवार्ड है एवरी मंडे आपके वॉलेट में क्रेडिट किया जाएगा, जिसको आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। विड्रॉल करने के लिए दोस्तों KYC मैंडेटरी है, ठीक है। मिनिमम विड्रॉल आपका $10 का होगा, मैक्सिमम आप एक बार में कितना मर्जी कर सकते हैं। विड्रॉल आपका 48 आवर्स में आपके पास में आ जाएगा। आप अपना बाइनेंस में ले सकते हो या ट्रस्ट वॉलेट में, जहां से भी लेना चाहते हैं वहां पे भी आप लेना चाहते हो वहां पे ले सकते हो आप। और विड्रॉवल और डिपॉजिट दोनों आपका USDT TRC20 में ही होने वाला है। तो यहाँ पे कोई टोकन नहीं है और कोई दूसरी क्रिप्टो नहीं है, कोई फॉरेक्स नहीं है,
ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंसेप्ट है, तो ये उसी करेंसी में ट्रेड करेंगे जो कि कॉमनली हर जगह यूज हो जाती है, जैसे कि यूएसडीटी, ये हर मार्केट में ट्रेड होता है, ठीक है। और जितना भी आप विड्रॉल करेंगे, विड्रॉल की फीस लगेगी $5 की, चाहे आप $10 विड्रॉल कीजिए, चाहे $500 कीजिए, 1000, 10,000 या 1 लाख। ओके, आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका होगा। अब इन्होंने अपनी इस प्रेजेंटेशन में बताया है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट कैसे वर्क करती है, उसमें हमारा प्रॉफिट जो लोग ट्रेड कैसे करते हैं, और क्यूजेट असेट मैनेजमेंट उनसे कितना सेफ है। तो इन्होंने एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जहां पे अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से अपने तरीके से हम ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो उसका आरओआई हमारी कैपिटल पे उस पे ही हमारा डिपेंड करता है कि अगर हमें प्रॉफिट होता है तो ही हमें आरओआई मिलेगा, यानी कि अगर हम ट्रेड करते हैं तो प्रॉफिट भी हो सकता है, हमें लॉस भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारा जो आरओआई है ये उसका 2x होकर ट्रेड होगा और हमारा कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा। जैसे कि इन्होंने अगला ऑप्शन दे दिया, नो कैपिटल प्रोटेक्शन। अगर हम खुद ट्रेड करते हैं तो हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट में आपका जो कैपिटल है वो 100% प्रोटेक्शन में रहता है। कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, कैसे होते हैं, क्या उसकी लिक्विडिटी है, उसकी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को नहीं मिल पाती बाहर मार्केट में। यहाँ पे जो भी कंपनी ट्रेड करती है, आप कंपनी के ट्रेड को खुद वॉच कर पाओगे, फुली ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। कई बार बाहर जो है मार्केट में एस्क्रो अवेलेबल नहीं रहता और यहाँ पे थर्ड पार्टी एस्क्रो अवेलेबल है। हम जो खुद ट्रेड करते हैं पर्सनल लेवल पे, उसमें हमारे इमोशंस भी जुड़े रहते हैं और इमोशंस में कई बार इंसान अच्छे ट्रेड नहीं ले पाता है, ऐसा ये ट्रेडिशनल तरीका बोलता है। और जो भी एआई बेस ट्रेडिंग्स होती है, ठीक है, जो भी रोबोटिक्स ट्रेडिंग्स होती है, वो एक एल्गोरिथम को फॉलो करती है, ओके, और एल्गोरिथम के हिसाब से ही ट्रेड करके ही प्रॉफिट जनरेट करती है, उसमें इमोशंस की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारी ट्रेड जो है उसके जो रिजल्ट है वो ज्यादा बेटर रहते हैं, राइट। तो ये बताया इन्होंने क्यूजेट असेट्स मैनेजमेंट में ट्रेडिंग का क्या मतलब है और ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड ऑप्शन है जो कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर सिस्टम में एंटर होता है, अपना फंड यहाँ पे डिपॉजिट करता है और अगर पहले 4 महीने में अगर वो एग्जिट करना चाहते हैं कंपनी से पूरी तरह से, तो वो कर सकते हैं। कंपनी ने ये ऑप्शन भी कस्टमर को दिया है, ठीक है। अगर कस्टमर पहले 30 दिन के अंदर एग्जिट होना चाहता है फुल्ली तरीके से, तो वो हो सकता है, लेकिन उसको 50% पेनल्टी फीस उसकी लग जाएगी, क्योंकि उसके ज्वाइन होते ही ऊपर जो है कमीशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रेफरल बोनस या जो भी इनका जो इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो कंपनी ने 50% का पेनल्टी फीस रखी है। अगर कस्टमर सेकंड मंथ में अगर यहाँ से एग्जिट होना चाहता है तो सिर्फ 25% की आपकी पेनल्टी लगेगी, बाकी 75% आपको जो है यहाँ से रिटर्न मिल जाएगा। अगर थर्ड मंथ में अगर आप एग्जिट होते हो तो 10% की पेनल्टी लगती है, 90% फंड आपको रिटर्न मिल जाता है और 91 डे से कोई भी पेनल्टी नहीं निकलती है। अगर आपका कोई पेनल्टी नहीं बनती है और अगर आपका कोई फंड बचता है तो आप उसको फुल्ली एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले 4 महीने में कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको सिस्टम में कभी भी प्रॉब्लम हो या आपको लगता है कि आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो इस सेकंड और बहुत अच्छा ऑप्शन कंपनी ने कस्टमर को दिया है। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको बताई डेली रिवार्ड के बारे में, जो हमें 15% और 30% के हिसाब से आएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे टीम बनाकर भी आप एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। वो कैसे पॉसिबल है, इसमें वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंपनी ने स्पेशली 2 तरह की इनकम ही रखी है। ये 2 इनकम ही इसकी कंपनी की मेन इनकम है एक्चुअल में, ठीक है। अगर आप किसी को डायरेक्ट रेफर करते हो तो रेफरल इनकम कंपनी रखी है 10%, ओके। जो भी क्लाइंट अपना फंड लगाएगा, जो भी इनका ओम होगा, यानी कि जो आपके रेफरल लिंक से कोई अपना जो भी पैकेज परचेज करेगा, उनके पैकेज का 10% आपको रेफरल कमीशन मिल जाएगा इंस्टेंट, ओके। और बाइनरी बोनस आपके लेफ्ट और राइट में जितना भी बिजनेस आपका मैच होगा, पर मैचिंग का आपको 10% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ओके। एक और नोट मैं आपको बता देता हूँ।
आप जब भी आप इस सिस्टम में एंटर करते हैं और कोई भी पैकेज आप लेते हैं, उसका रिवार्ड आपको 4x तक ही मिलेगा। और 4x का रिवार्ड आप चाहे टीम से कमाए, चाहे आप अपने डेली रिवार्ड से कमाए, जैसे ही वो 4x हो जाएगा, इन दोनों में से जैसे भी हो जाएगा, जब भी हो जाएगा, आपका पैकेज एक्सपायर हो जाएगा, तो आप दोबारा भी टॉपअप करके एंट्री ले सकते हो। ठीक है, बस ये दो ही इनकम है जो मेन है इस कंपनी में, जिसके बारे में बताया है। और एक तीसरी इनकम है जो मैं आपको और समझा देता हूँ। बाकी इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं जो आप पीडीएफ में आगे पढ़ सकते हो। डेमो से इन्होंने स्ट्रक्चर भी बना के इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, और एक और इन्होंने ये एक बोनांजा है जो अपडेट होता रहता है, जो चेंज होता रहता है। ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है नेटवर्कर्स को। जैसे कि इन्होंने टोटल 5 रैंक बनाए हुए हैं। रैंक 1 में क्या है कि अभी कि अगर आप $3000 टीम से कमाते हैं, जिसमें आपका रेफरल इनकम होगी और बाइनरी बोनस होगी, इसमें आपका रिवार्ड इनकम कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप $3000 टीम से कमाते हैं तो $500 आपको एज ए रिवार्ड आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ये आपका रैंक 1 क्लियर हो जाएगा। और अगर आप $6000 कमाते हैं टीम से, तो आप या तो $1800 ले सकते हैं या सैमसंग गैलेक्सी S22 मोबाइल आप कंपनी से ले सकते हैं और आपको वाइस प्रेसिडेंट का रैंक मिल जाएगा। और अगर आप $20000 कंपनी से कमा लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंपनी से आप या तो $8000 का रिवार्ड ले सकते हैं या फिर आप रोलेक्स वॉच भी ले सकते हैं। मॉडल भी कंपनी ने मेंशन किया है कि डेट जस्ट मॉडल जो है आप यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो रैंक ये हो जाएगा आपका 3rd सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का। और 2 रैंक है। एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको $50000 टीम से कमाने हैं, या तो $20000 का रिवार्ड ले सकते हैं या फिर रोलेक्स का सबमरीन मॉडल आप यहाँ से ले सकते हैं। लास्ट और सबसे बड़ा जो रैंक है यहाँ पे डायरेक्टर का है। आपको टीम से $1,50,000 कमाने हैं, तो उससे या तो आप $75,000 आप यहाँ से कंपनी से रिवार्ड में ले सकते हैं या फिर आप मर्सिडीज बेंज यहाँ से कंपनी से एज ए रिवार्ड ले सकते हैं, GLC मॉडल। ठीक है, तो आई थिंक कई बार लोग सोचते हैं कि इनको अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है, बट जब मैंने इसके बारे में स्टडी किया, देखा लोगों को काम करते हुए, तो मैंने पाया कि वाकई में एक्चुअली हो रहा है और लोग ये रिवॉर्ड अचीव भी कर रहे हैं। जैसे कि मैडम ने ये साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया में ये जो वर्क चल रहा है काफी बड़े लेवल पे चल रहा है और $20,000 का इन्होंने रिवार्ड भी जीता है। ओके, तो बहुत लोग हैं जिन्होंने ये जो रैंक है अचीव किया है। $20,000 का मतलब कि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का रिवार्ड इन्होंने अचीव किया है, रैंक अचीव किया है। तो ये इस तरीके से इस बिजनेस में दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई है। बेसिकली ये रिवार्ड चेंज होते रहते हैं, तो हमारे पास में 3 तरह की इनकम ही मेन है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डेली रिवार्ड इनकम जो कि आपके पैकेज पे 15% या 30% जो भी आपके पैकेज के अकॉर्डिंग होगा वो आपको मिल जाएगा, अप टू 400% तक। ओके, डायरेक्ट इनकम 10% की है, बाइनरी इनकम 10% के रिवार्ड आपको मैंने बता दिए हैं जो कि चेंज भी होते रहते हैं। तो दोस्तों ये था कंपनी का प्लान जो कंपनी ने हमारे सामने प्रेजेंट किया। मैंने आपको कंपनी की पूरी प्रोफाइल बताई है, ठीक है, और उसकी डिटेल भी मैंने आपको पूरी जानकारी दी है और कंपनी की प्रोफाइल आपको आई थिंक समझ चुके होंगे। इसके बारे में दोस्तों QZ असेट मैनेजमेंट में अगर आपका प्लान के रिगार्डिंग या इसकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट बनता है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी मार्केटिंग डायरेक्टर से या फिर इनके जो CEO ब्लेक यंग, इनसे आप डायरेक्ट जूम पर डिस्कशन कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन पूछकर उनका जवाब भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट से जुड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें इन्होंने और हमारे सामने प्रेजेंट की है। इन्होंने बताया है कि AMEX से इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन किया वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और इन्होंने ये भी बताया कि ASIC क्या होता है, FMA क्या होता है। एक्चुअली ये हर कंट्री के हिसाब से, हर एक लोकेशन के हिसाब से अपनी अपनी एक एसोसिएशन होती है जो रेगुलेशन का काम करती है। जैसे कि ASIC की क्या रूल है वहाँ पे ऑथराइज होने के लिए, FMA की क्या रूल्स हैं और AMEC की क्या रूल है, इन्होंने ये बताया है।
तो एम अपने आप में एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है और यहाँ पे अपने आप से रजिस्टर होने के लिए और एसोसिएट होने के लिए जितने भी क्राइटेरिया की जरूरत पड़ती है, इन्होंने हर एक क्राइटेरिया को कंप्लीट इन्होंने फुलफिल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने, और दूसरा इन्होंने कैपिटल प्रोडक्शन जो प्रोग्राम रखा वो भी काफी अच्छा रखा है। इन्होंने एफिलिएट प्रोग्राम रखा है, इन्होंने बाइनरी प्रोग्राम रखा है, IRP बोनस रखा है। वर्ल्ड में जगह जगह ऑलरेडी इनके ऑफिस बने हुए हैं। ब्लूमबर्ग्स में इनके आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हो। और इनका एक और ऑफिस नया जनवरी 2023 में बन रहा है डरबान साउथ अफ्रीका में। दोस्तों इनका एक नया ऑफिस बन रहा है, ये एड्रेस आपकी स्क्रीन पे हो रहा है। जनवरी में आप इस एड्रेस पे भी विजिट करके आप कंपनी के बारे में और जानकारी ले सकते हो। खुद CEO जो इसके ब्लेक योंग वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ओके, फेसबुक पे, ट्विटर पे ये अवेलेबल है, यहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हो क्यूजेट असेस मैनेजमेंट के नाम से, ट्विटर पे क्यूजेट इन्वेस्ट के नाम से। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों ये आने वाले समय में जिन एक्सपो में पार्टिसिपेट्स करने वाले हैं तो उसके बारे में भी इन्होंने बताया है। जैसे कि थाईलैंड में भी इवेंट होने वाला है फिनटेक फेस्टिवल, जो कि 23 से 25 फरवरी तक चलेगा बैंकॉक में। और आप चाहें तो नेटवर्क, अगर आप यहाँ पे नेटवर्किंग करते हैं, अगर आपको ये प्लान पसंद आता है तो यहाँ का जो टूर है कंपनी से आप फ्री में अचीव कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी ने क्राइटेरिया ये रखा है कि बैंकॉक टूर अचीव करने के लिए आपको $6,000 जो है आपको अर्न करना है। ठीक है, फॉर बैंकॉक टूर। और ये आपका एटलीस्ट 5 डेज का जो है आपका टूर रहेगा। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, लोगों को ऑलरेडी लोगों को उनकी जो टिकट्स है आनी शुरू हो चुकी हैं इस टूर के रिगार्डिंग ही। ठीक है, तो इस टूर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ $6,000 आपको आपकी टीम से कमाने हैं। दूसरा, इंडिया में ही एक एक्सपो हो रहा है, फिनटेक्स इंडिया एक्सपो, जो कि मार्च 27 से 29 तक होगा, न्यू दिल्ली में होगा। यहाँ पर भी क्यूजेट अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपनी BDI टेक्नोलॉजी को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। उसके बाद में यूरोप में हो रहा है जून में, और जून में ही आपका साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्यूजेट अपनी टेक्नोलॉजी BDI को प्रेजेंट करने वाला है। तो यहाँ पे आप इनको आप अपने आप के सामने देख सकते हो। उसके बाद में ये इसकी प्रोफाइल है, जिसको आप पूरा डिटेल में चाहे तो स्टडी कर सकते हो। न्यूज़पेपर में काफी क्यूजेट के बारे में आर्टिकल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर हम बैनर्स की बात करें तो बड़े बड़े लोकेशंस पे इनके बैनर्स, होल्डिंग्स, अपना एयरपोर्ट्स पे भी आपको इनके बैनर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बस पे, आपके बस स्टॉप पे, वैन्स पे, काफी जगह इन्होंने बहुत बड़ी अपना जो है ऑलरेडी मार्केटिंग की हुई है। तो दोस्तों ये थी इसकी प्रोफाइल, जो मैंने आपको कंप्लीट इनकी विजिबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी और की ब्रांड अवेयरनेस के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे जानकारी दी है। और जैसे कि आपने अभी मैंने आपको इनके बारे में बताया। ये जो BDI है, इन्होंने साउथ कोरिया में इसको भी प्रेजेंट किया था। ठीक है, सियोल में। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी BDI टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट किया था। तो ये सारी जो डिटेल है ना दोस्तों, ये सब अवेलेबल है, जिसको आप पूरा का पूरा रीड कर सकते हो। ठीक है, तो A to Z जो भी आप स्टडी करना चाहते हो, जितना भी स्टडी मटेरियल चाहिए आपको स्टडी करने के लिए दोस्तों, आपको कहीं भी नहीं जाना है। आपको सीधा इनकी वेबसाइट ओपन करनी है। ओके, और इस वेबसाइट पे मैं आपको बता दूंगा कि यहीं पे आपको जब आप लॉगिन करेंगे तो वहीं पे इन्फो में आपको ये सारे का सारा स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस वगैरह सब मिल जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों अपने आप को इन्होंने न्यूज चैनल पर भी अपने आप को पार्टिसिपेट किया है।泽资产管理有限公司呢是一家领先的资产管理公司。ठीक है, तो ये सब मटेरियल आपको सब यहाँ पे स्टडी करने के लिए मिल जाता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये जो वेबसाइट है ये एक तरीके से पूरी एक अपने आप में गाइड है।
जितना भी आप इसके बारे में जानना चाहते हैं, इस एक वेबसाइट पे आप चले जाइएगा, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सभी डिटेल यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। डन। तो दोस्तों आई थिंक मैंने अपनी तरफ से क्यूजेट असेस मैनेजमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी आज की इस वीडियो में दे चुका हूँ।